Hello everyone, welcome to Value Investors. So far, we have already discussed that why we should invest in passive funds over actively managed funds. अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये सिर्फ हमें ही लगता है कि हमें इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए? क्या किसी और को ये बात नहीं मालूम है? क्या सिर्फ ये हमारी ही थिंकिंग है? किसी बड़े इन्वेस्टर ने क्या आज तक ऐसा नहीं बोला है? तो मेरा जवाब यही है कि बड़े इन्वेस्टर को तो छोड़ो, इन्वेस्टिंग के भगवान ने ये बात बोली है कि हमें इंडेक्स फंड में ही इन्वेस्ट करना चाहिए। तो अब तक जो हमने समझा और सीखा है उस पर अपना विश्वास और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए चलिए हम ये वीडियो देखते हैं और इसके बाद मैं ये बेट कर सकता हूं कि आपको भी उतना ही ट्रस्ट हो जाएगा कि why index fund is far better than actively managed funds. I'd like to ask both of you, if you were 30 years old again and had your first $1 million in the bank, how would you invest it? Well, I'll be very simple. Under the conditions you name, I'd probably have it all in a very low-cost index fund, and it'd probably be, might be Vanguard. Somebody I knew was reliable, somebody where the cost was low, and because you postulated that you're not going to become a professional investor, I would recognize the fact that I'm an amateur investor, and I would feel that unless bought during a strong bull market, which this hasn't been, I would feel that was going to outperform to a degree bonds under current conditions over a long period of time, and then I'd forget it and go back to work. Charlie? Yeah, it's in the nature of things that you aren't going to have a whole lot of screamingly successful professional investors. You've got a great horde of professionals taking croupiers' profits out of the system, most of them by pretending to be professional investors. And that is in the nature of things too. But if you don't have any rational prospects of being a very skilled professional investor, of course you should compromise on something like an index fund. That you will not get that advice from anybody because nobody gets paid to give you that advice. And so you will have all kinds of people telling you how much better they can do for you than that, and how if you just give them a wrap fee or give them commissions or whatever it may be, that they will do better, but they won't do better. On average, 1,000 other people like you do the same thing. That group of 1,000 will do worse if they listen to the people that make pitches at them. And in the end, why should you expect? I mean, you'll get a very perfectly decent return over a 30 or 40 year period by doing what I suggest. And why should you expect more than that when you don't bring anything to the party? The salesman will tell you that you'll get it, but you won't. ऑल राइट, तो वीडियो देखने के बाद मुझे लगता है कि हम सबको अब अच्छी तरह से समझ में आ गया है कि क्यों हमें पैसिव फंड्स को प्रेफर करना चाहिए ओवर एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स। वारन बफेट और चार्ली मंगर ने इसका आंसर बहुत ही आसान शब्दों में हम सबको ऑलरेडी दे दिया है वीडियो के माध्यम से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे माइंड में आ रहा है वो ये है कि हमें कौन से फंड हाउस से इंडेक्स फंड खरीदना चाहिए। अब चूंकि इंडिया में बहुत सारे फंड हाउस है जो इंडेक्स फंड को बेचते हैं, तो ये लाजमी है कि हम सब कंफ्यूज हो जाएं कि कौन सा फंड हाउस बेस्ट है। तो मेरा जवाब ये है कि हम ट्रैकिंग डिफरेंस का पता करके ये पता लगा सकते हैं कि कौन सा म्यूचुअल फंड हाउस बेटर है दूसरे से। अब ये ट्रैकिंग डिफरेंस क्या होता है, तो इसको आइए एक एग्जांपल से समझते हैं। अब आपको आपके स्क्रीन पर एक एक्सेल शीट दिख रही है और इस पर आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है ट्रैकिंग डिफरेंस को समझाने के लिए। ये एग्जांपल जस्ट एक अंडरस्टैंडिंग पर्पस से है और इसमें जो भी नंबर्स लिए गए हैं वो सभी फॉल्स नंबर्स हैं। यहाँ पर मैंने ईयर्स को मेंशन किया है, यहाँ पर मैंने इंडेक्स फंड के रिटर्न्स को मेंशन किया है, यहाँ पे मैंने निफ्टी 50 के रिटर्न्स को मेंशन किया है जो कि हमारा बेंचमार्क है, और यहाँ पे ट्रैकिंग डिफरेंस को दिखाया है। अब एक्चुअली ट्रैकिंग डिफरेंस होता क्या है इसको हम समझते हैं। ट्रैकिंग डिफरेंस होता है कि किसी फंड ने किसी साल में उसके बेंचमार्क के अगेंस्ट कैसा परफॉर्म किया है। मतलब ये है कि अगर निफ्टी 50 ने 2017 में
12% का रिटर्न दिया तो जो इंडेक्स फंड उसको फॉलो कर रहा था, उसको ट्रैक कर रहा था, उसका रिटर्न 11% था और इन दोनों का ही डिफरेंस 1% का रहा। तो सेम वे ईयर ऑन ईयर ये डिफरेंस कभी पॉजिटिव, कभी नेगेटिव और कभी सेम रहा। तो इसी डिफरेंस को ट्रैकिंग डिफरेंस कहा जाता है। तो आसान शब्दों में मैं यही कहना चाहूंगा कि कोई भी इंडेक्स फंड जो उसके बेंचमार्क को फॉलो करता है, अगर इन दोनों के रिटर्न में जो डिफरेंस आ जाए उसको हम ट्रैकिंग डिफरेंस बोल सकते हैं। अब फिर से क्वेश्चन ये बनता है कि ट्रैकिंग डिफरेंस आता ही क्यों है? अब जब सभी म्यूचुअल फंड्स ये कह के अपने फंड को बेचते हैं कि उनका फंड निफ्टी 50 को रेप्लिकेट कर रहा है, तो रेप्लिकेट करने का तो मतलब यही होता है कि एग्जैक्ट वही रिटर्न दे रहा है जो निफ्टी 50 दे रहा है। तो ट्रैकिंग एरर्स के कई रीजन हो सकते हैं, उनको मैं एक डिटेल में थोड़ा मेंशन कर देता हूं। सबसे पहला रीजन है म्यूचुअल फंड हाउसेस के एक्सपेंस। हमें कोई भी म्यूचुअल फंड लेने से पहले सबसे पहले उसके एक्सपेंस रेशियो को देखना चाहिए कि उसका एक्सपेंस रेशियो कितना है। जितना ज्यादा म्यूचुअल फंड हाउसेस का एक्सपेंस रेशियो रहेगा, ट्रैकिंग एरर उतना ही ज्यादा रहेगा। इस बात को हमें ऐसे समझ के चलना है। दूसरा इसका एक रीजन है, वो ये है कि जब भी हम किसी इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो जो फंड हाउस है वो हमारा सारा पैसा इन्वेस्ट नहीं करता है, वो कुछ परसेंटेज कैश के फॉर्म में रखता है। उसका रीजन यही है कि हर समय कोई न कोई इन्वेस्टर अपना इंडेक्स फंड खरीद रहा होता है और कोई बेच रहा होता है, तो वो बार बार उनकी यूनिट्स को बेचते नहीं है, वो एक बार खरीद लेते हैं और बाद में एक दूसरे को ट्रांसफर करते रहते हैं। और इन एक्टिविटीज को करने में फंड मैनेजर को कुछ टाइम लगता है, तो उस टाइम के चलते बेंचमार्क की वैल्यू में उतार चढ़ाव आ सकता है। तो उतना फर्क हमेशा इंडेक्स वर्सेस बेंचमार्क में हमें देखने को मिलता है। और तीसरा रीजन है कि बाई और सेलिंग जब हम इंडेक्स स्टॉक्स में करते हैं तो उसकी सबसे बड़ी समस्या ये है कि अगर निफ्टी 50 में 50 कंपनियां हैं तो कुछ कंपनियों के प्राइस ऑलमोस्ट ड्यूरिंग डे सेम रहते हैं, उनमें कुछ ज्यादा फर्क होता नहीं है। लेकिन कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं जिनके प्राइस में 20% तक चेंज आ सकता है। तो जब कभी भी ऐसी वोलेटिलिटी आती है तो उस समय फंड मैनेजर एकदम से उतनी तत्परता से बाइंग या सेलिंग नहीं कर सकता, जिसके चलते ये ट्रैकिंग एरर आ जाता है। तो अब हमें ये आसानी से समझ में आ रहा है कि जितना कम ट्रैकिंग एरर रहेगा उतना ही ज्यादा हमारे लिए बेनिफिट रहेगा और हम उतना ही क्लोजली रिटर्न्स ऑब्टेन कर पाएंगे बेंचमार्क के अगेंस्ट में। अब देखिए, आप चाहे किसी भी फंड हाउस के थ्रू इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर लीजिए, आपको कभी भी एग्जैक्ट रिटर्न नहीं मिलेगा जो बेंचमार्क का रिटर्न होता है। तो हमें फंड हाउस के थ्रू इंडेक्स फंड बाय करते समय सबसे पहले ये चेक करना चाहिए कि किस फंड हाउस का ट्रैकिंग डिफरेंस सबसे कम है। और इसको हम कैसे पता कर सकते हैं? इसको हम पता कर सकते हैं एमपी की वेबसाइट पर जाकर पैसिव फंड्स के ट्रैकिंग एरर और ट्रैकिंग डिफरेंस का डाटा निकालकर। और वो हम कैसे निकाल सकते हैं? आप गूगल करेंगे ट्रैकिंग एरर एंड ट्रैकिंग डिफरेंस फॉर पैसिव फंड्स एमपी लिख के, तो आप इस वेबसाइट पर आ जाएंगे और ये पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। और आप डाउनलोड एक्सेल पर जब क्लिक करेंगे तो आपके लिए एक एक्सेल फाइल डाउनलोड हो जाएगी जिसमें से आप ये सब डाटा देख सकते हैं। अभी डाटा कैसे दिखता है इसको अब हम देख लेते हैं। तो हम सबकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने ये डाटा एमपी के वेबसाइट से डाउनलोड किया है। जितने भी ग्रीन कॉलम और ये लाइट येलो कॉलम है वो एक्सेल शीट के ही पार्ट है, जितने भी डार्क येलो कॉलम है वो मैंने एडिशनली ऐड किए हैं हम सबकी अंडरस्टैंडिंग के लिए और ये फाइंड आउट करने के लिए कि कौन सा फंड हाउस बेस्ट है आज की डेट में निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने के लिए। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि मैंने फिल्टर किया हुआ है इस डाटा को और बेंचमार्क मैंने सेलेक्ट किया हुआ है निफ्टी 50 टोटल रिटर्न इंडेक्स। और मैंने सिर्फ उन्हीं फंड हाउस को चुना है जो कम से कम पिछले 5 साल से इंडेक्स फंड को बेच रहे हैं, यानी कि जो काफी नए नहीं है, वो काफी पुराने हैं और मोर देन 5 इयर्स वो मार्केट में अपने निफ्टी 50 के इंडेक्स प्लान को बेच रहे हैं इन्वेस्टर्स को। तो हमारे लिए यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट डाटा था वो था ट्रैकिंग डिफरेंस डायरेक्ट सिंस लॉन्च परसेंटेज, और जो सबसे कम परसेंटेज है वो है IDFC निफ्टी 50 इंडेक्स फंड की। अब देखिए, मैंने ये ट्रैकिंग डिफरेंस सभी डायरेक्ट प्लान का सेलेक्ट किया है। 2 प्लान होते हैं, डायरेक्ट और रेगुलर। रेगुलर में हमें जाना नहीं है, हमें सिर्फ डायरेक्ट प्लान में ही इन्वेस्ट करके चलना है, तो मैंने ट्रैकिंग एरर भी डायरेक्ट का ही सेलेक्ट किया है। हम सब की अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने स्कीम असेट साइज भी मेंशन कर दिया है कि किस फंड में लोगों ने कितना पैसा लगाया हुआ है, और एक्सपेंस रेशियो भी मेंशन कर दिया है कि किस फंड का एक्सपेंस रेशियो सबसे कम है और सबसे ज्यादा है, और निफ्टी 50 के रिटर्न के अगेंस्ट इन फंड ने कितना रिटर्न दिया है वो डाटा भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है और इसको रैंक भी दे दिया है। अब मैंने फंड का रिटर्न निफ्टी 50 के अगेंस्ट कैसे निकाला, तो इसको मैंने ऐसे समझा है कि अगर निफ्टी 50 ने 100% का रिटर्न दिया है तो ट्रैकिंग एरर को माइनस करने के
के बाद इस फंड की जो परफॉर्मेंस है वो आती है 99.71, जो कि सबसे ज्यादा है। इसलिए सबसे बेस्ट फंड मैं इसी को मानता हूं। और इस फंड हाउस की सबसे अच्छी बात यह है कि पिछले 5 सालों से ये मार्केट में अवेलेबल है और इसका एक्सपेंस रेशियो अभी भी सबसे कम है, यानी कि 0.10। यूजुअली होता क्या है, जब भी कोई फंड हाउस अपना प्लान लेके आता है तो इनिशियली वो एक्सपेंस रेशियो सबसे कम रखता है और ओवर द टाइम वो अपने रेशियो को बढ़ा देता है। लेकिन इसका एक्सपेंस रेशियो 5 साल होने के बावजूद 0.10 है। लेकिन मेरा एक कंसर्न इसमें यह भी है कि बहुत ही कम लोगों ने इस फंड में इन्वेस्ट किया है। आप इसका साइज दे सकते हैं, सिर्फ 574 करोड़ का इसका साइज है। वेयरएज मैंने जब यूटीआई का प्लान लिया था अपने खुद के इन्वेस्टमेंट पर्पस से, उस समय इसका एक्सपेंस रेशियो कम हुआ करता था, यानी कि लेस देन 2.0 था और असेट साइज थोड़ा सा ही कम था। तो उसी को ध्यान में रखते हुए कि फ्यूचर में कभी कोई फंड हाउस अपने प्लान को डिसकंटिन्यू ना कर दे, मैंने यूटीआई को उस समय सेलेक्ट किया था। लेकिन अगर आज मैं देखता हूं तो मुझे सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव आईडीएफसी का निफ्टी 50 इंडेक्स का ये प्लान लगता है। अगर आप भी असेट साइज को लेके थोड़ा चिंतित हैं तो आप आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी 50 इंडेक्स फंड को भी ले सकते हैं, क्योंकि रिलेटिवली इसका साइज इनसे काफी बड़ा है और एक्सपेंस रेशियो भी लेस देन 0.20 है और रैंक के हिसाब से भी ये टॉप 3 में आता है। तो इस तरह से हमने ये समझ लिया है कि हम कैसे पता लगा सकते हैं कि कौन सा फंड हाउस कितना बेटर परफॉर्म कर रहा है मार्केट में सभी मौजूदा फंड हाउस के कंपैरिजन में। अब एक और क्वेश्चन हमारे माइंड में आ रहा है कि हम एक्सपेंस रेशियो कहां से पता कर सकते हैं। तो इसको हम ऐसे पता कर सकते हैं कि जब हम अपने ब्रोकर की ऐप पर जाकर इस प्लान को सर्च मारते हैं, जैसे कि आईडीएफसी निफ्टी 50 इंडेक्स, मैंने इतना लिखा, यहाँ पे मेरे सामने प्लान आ गए, डायरेक्ट प्लान ग्रोथ और डायरेक्ट प्लान IDCW। हमें हमेशा डायरेक्ट प्लान ग्रोथ ही सेलेक्ट करना है और जब हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पे नीचे आके देखेंगे स्कीम की रेटिंग वैल्यू सर्च के द्वारा इसको 4 आउट ऑफ 5 स्टार्स दिए गए हैं और यहाँ पे आप स्कीम असेट साइज और एक्सपेंस रेशियो भी देख सकते हैं और यहीं से मैंने ये दोनों डाटा लेके एक्सेल शीट में मेंशन किए थे। ऑलराइट, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे माइंड में आ रहा है वो ये आ रहा है कि हमें फंड हाउस की ऐप के माध्यम से इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर किसी अदर ऐप को यूज करना चाहिए इस निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट के पर्पज से। तो देखिए, इसमें हमारी और आपकी राय अलग अलग हो सकती है। उसका रीजन यही है कि जो लोग सिर्फ म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो तो कोई सा भी ऑप्शन प्रेफर कर सकते हैं। वो चाहे तो किसी ब्रोकर की ऐप से भी कर सकते हैं जिस पर ये फैसिलिटी अवेलेबल हो इन्वेस्टमेंट की, या फिर फंड हाउस की ऐप के माध्यम से भी इन्वेस्टमेंट अपनी कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन जो लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और साथ ही साथ म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उनको मेरी यही सलाह है कि वो कोई ऐसी ऐप सेलेक्ट करें जो म्यूचुअल फंड में भी और स्टॉक मार्केट में भी एक ही ऐप के माध्यम से इन्वेस्टमेंट करने की फैसिलिटी देती है। अब ऐसी ऐप कौन सी है? तो मैं जिस ऐप को रेकमेंड करता हूं वो है पेटीएम मनी। अब ध्यान रहे, पेटीएम और पेटीएम मनी दोनों अलग अलग ऐप है। मैं पेटीएम मनी की बात कर रहा हूं। अब ये मेरी अपनी पर्सनल चॉइस है, मैं इसको ये नहीं कह रहा कि आपको पेटीएम मनी से ही करना चाहिए, लेकिन हमें पेटीएम मनी से ही क्यों करना चाहिए, तो उसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि एक तो ऐप दोनों ही तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, दूसरा ये है कि ये जो ऐप है वो फ्रीक्वेंटली अपडेट होती रहती है और इसमें नए नए फीचर्स अपडेट होते रहते हैं जो हर इन्वेस्टर के लिए काफी ज्यादा यूजफुल होते हैं। अदर जो एप्स हैं वो इतना फ्रीक्वेंटली अपडेट नहीं होती है और उनमें फीचर्स भी इतने ज़्यादा नहीं होते हैं। तो मैंने काफ़ी ऐप्स को यूज़ किया हुआ है, तो उन सबको यूज़ करने के बाद मेरा रेकमेंडेशन तो सिर्फ पेटीएम मनी को ही यूज़ करना है। बाकी जो लोग जिन्होंने ऑलरेडी किसी ऐप के माध्यम से शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और वो म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो फंड हाउस की ऐप को भी यूज कर सकते हैं, या जिन लोगों ने ज़ेरोधा के प्लेटफॉर्म पर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया हुआ है तो वो ज़ेरोधा कॉइन को भी डाउनलोड करके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पेटीएम मनी और ज़ेरोधा कॉइन इन दोनों ही एप्लीकेशन का साइड बाय साइड कंपैरिजन करेंगे और समझेंगे कि वाई पेटीएम मनी इज फार बेटर देन ज़ेरोधा's कॉइन ऐप। और साथ ही साथ हम ये भी समझेंगे कि जब हम अपनी फर्स्ट इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करेंगे निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में तो हमें लमसम इन्वेस्टमेंट करना है या सिप के माध्यम से इन्वेस्टमेंट करना है। दोनों के प्रोस और कॉन्स को हम अच्छी तरह से समझेंगे। हमें मार्केट ऊपर जाए तब इन्वेस्ट करना है या मार्केट नीचे जाए तब इन्वेस्ट करना है। तो हम एक ऐसी स्ट्रेटेजी बनाएंगे कि जिससे कि हम मिनिमम इन्वेस्ट करें और मैक्सिमम रिटर्न ऑब्टेन कर सकें मार्केट कंडीशंस को ध्यान में रखकर।
तो तब तक जो लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मैंने इन दोनों ही ऐप्स के लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। उन लिंक्स को यूज करके आप इन ऐप्स को डाउनलोड कर सकते हैं और तब तक आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं और केवाईसी प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं, ताकि नेक्स्ट वीडियो में जब हम कोई इन्वेस्टमेंट करने की बात करें तो आप तुरंत कोई डिसीजन ले सकें और वीडियो को देखते देखते ही अपनी फर्स्ट इन्वेस्टमेंट कर सकें। फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको इंफॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले सभी इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।